Okay, good afternoon one and all. Today is 20th March 2021 and we'll be taking functions. A function with no argument, no return value. We begin with comment entry. This is a comment entry. A comment entry written in C language. stdio.h header file include किया है. Now this is the function prototype. This function prototype signifies it's no argument, no return type function. ये function कैसा है जो कोई भी argument ले नहीं रहा और कोई भी value return नहीं कर रहा. This statement is called as function prototype. Function prototype में return value, the function is not returning any value, that is why we are writing void. Name of the function is add. Since function is not taking any argument, it is empty bracket. Semicolon से terminate किया, it means it is the function prototype or it is called as function declaration. सिर्फ इसको declare किया है, forward declaration of the function, ताकि ये प्रोग्राम में बताया जाए कि ये इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं प्रोग्राम में प्रेजेंट है. फिर हमने मेन शुरू किया. मेन इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. देखो मेन को कैसे लिखते हैं, void return nothing, main function name and it is taking no argument. curly bracket open. This is calling function. ये हम क्या कर रहे हैं, this is calling function and this is called as function prototype, which takes no argument and return no value. And this is the definition of the function. This is function definition. So this function is returning no value. जैसा इसका प्रोटोटाइप लिखा है वैसे ही लिखना है, return no value. तो यहाँ पर इसने no value return किया है. Then name of the function is add. Name of the function is add over here, and it is taking no parameter. This is also taking no parameter over here. Now curly bracket open, the definition of the function begins. Whatever the statement we write within this function, जो भी statements इस function के अंदर लिखी जाएगी वो statements इस function की local statement कहलाएगी. So here we are declaring two variables, number 1 and number 2. दो variables हमने declare किए which are local to the function. Next statement is we are printing the message printf enter two numbers. दो numbers को enter करना है. Then scanf %d that is number 1 and number 2. दो numbers को हमने user से read किया है. Then print the value addition of two numbers is %d that is number 1 plus number 2. दोनों को हमने add कर दिया. अब ये यहाँ पर कोई भी रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है क्योंकि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा. फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा. जब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो ये कैच भी कहीं नहीं कर रहा. तो सिंपली सबसे पहला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ से हैश इंक्लूड शुरू करेगा. देन इट बिगिंस विद द मेन स्टेटमेंट. ये यहाँ पर ये चेक करेगा कि फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है, ठीक है, ओके. देन इट बिगिंस विद द मेन. मेन से शुरू करेगा. मेन के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है ऐड, दैट इज कॉलिंग अ फंक्शन. जैसे ही कंट्रोल ऐड फंक्शन को देखेगा तो यहाँ कंट्रोल गोज टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ये ऐड लिखा है, दैट इज वी आर कॉलिंग अ फंक्शन. कंट्रोल गोज टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ये फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी. दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे. मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा एंटर टू नंबर्स. उसके बाद दो नंबर्स रीड हो जाएंगे, उनकी एडिशन आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर. कंट्रोल गोज बैक टू दिस एंड द प्रोग्राम एंड्स. दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स. ओके. Okay, two numbers enter करने. Suppose I have entered 2 and the second number is 3. What is the addition of the two numbers? It is 5. दो नंबर का एडिशन 5 आ गया. तो हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ? ये हैश इंक्लूड स्टेटमेंट, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन विच इज कॉल्ड एज फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन. मेन बिगिंस, void main, मेन शुरू हुआ. वी आर कॉलिंग ऐड फंक्शन. जैसे ही फंक्शन कॉल होगा फंक्शन की डेफिनेशन में कंट्रोल चला जाएगा. दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए. मैसेज स्क्रीन पे एंटर टू नंबर्स. ये टू नंबर्स का मैसेज आ गया. दो नंबर हमने रीड किया यूजर से 2 3. नंबर 1 में 2 वैल्यू चली गई, नंबर 2 में 3 वैल्यू चली गई. दोनों को प्लस कर दिया, मैसेज के साथ में प्रिंट आ गया. एडिशन ऑफ द टू नंबर्स, नंबर 1 नंबर 2 को ऐड किया, दैट इज 5. सो 5 विल बी प्रिंटेड. कंट्रोल गोज बैक टू दिस एंड द प्रोग्राम एंड्स. ओके. सो दिस इज प्रोग्राम which contains. Okay, now we write a function which takes argument but return no value. It takes argument, function takes argument and return and no return value. Takes argument and return no value. So here void means the function is not returning any value. The name of the function is add and it is taking two arguments, int a
इंट बी, दोनों का डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर। दो हमने आर्ग्यूमेंट्स डिक्लेयर किए। अब ये जो है ये सिर्फ फंक्शन का प्रोटोटाइप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेटमेंट जो है ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं और जो डेटा टाइप हमने यहाँ पर लिखा है वही पूरे प्रोग्राम में ऐसा ही यूज करना है। मतलब यहाँ पर अगर ये फंक्शन प्रोटोटाइप ऐसा लिखा है कि जिसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, फंक्शन का नाम ऐड है और दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो जहां पर भी फंक्शन कॉलिंग होगा या फिर फंक्शन की डेफिनेशन होगी ये फॉर्मेट सेम रहना चाहिए। अब देखो यहाँ फंक्शन कॉलिंग हो रही है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पर दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, तो यहाँ पर n1 n2 दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। n1 n2 का डिक्लेरेशन कैसा, इंटीजर। क्योंकि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये कोई वेरिएबल में वैल्यू कैच नहीं कर रहा है। डेफिनेशन में भी देखते हैं। ओके यहाँ पर लिखा है जिस तरह से उस टाइप से फंक्शन डेफिनेशन भी वैसे लिखेंगे। फंक्शन डेफिनेशन में रिटर्न टाइप नथिंग, void, फंक्शन नेम इज ऐड एंड इट टेक्स टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स int और यहाँ पर हमने वेरिएबल लिखे हैं। तो यहाँ पर टेम्पलेट सेम होना चाहिए, यहाँ वेरिएबल का नाम अलग होगा, टेम्पलेट सेम होना चाहिए। टेम्पलेट मतलब फॉर्मेट वे द फंक्शन प्रोटोटाइप इज बीन डिक्लेयर्ड, void name of the function add taking two integer arguments, it is not returning any value, name of the function is add taking two integer arguments. Definition also is same, returning no value, that is void, name of the function is add and taking two integer values. Now यहाँ पर हमने दो इंटीजर a और दूसरा इंटीजर b इस तरह से दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। यहाँ इंटीजर a और इंटीजर b दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। इसके बाद में मेन के अंदर हमने n1 और n2 दो वेरिएबल्स लिए। यहाँ पर हमने एंटर टू नंबर्स का मैसेज भेजा, नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू को यूजर से रीड किया और हमने यहाँ नंबर 1 नंबर 2 को यूज किया। ठीक है, जब हमने यहाँ नंबर 1 नंबर 2 को यूज किया तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर int p q तो अलग अलग दिख रहा है, यहाँ a b लिखा है, यहाँ n1 n2 लिखा है, यहाँ पर p q लिखा है और जो p q यहाँ पर पास किया है वो वैल्यू को हमने ऐड किया है। अब ये सब चीजें क्या होती है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद दिस। ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप है, इस फंक्शन प्रोटोटाइप में आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो, चाहे a लिख सकते हो, चाहे b लिख सकते हो, चाहे c, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि ये एक टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट सिर्फ इतना बताता है कि ये टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। अगर आपने यहाँ पर a और b इस तरह से दो वेरिएबल्स भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो a और b वेरिएबल लिख रहे हैं इसको कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया है, तो इसका लिखना नहीं लिखना कोई यूज में नहीं है। तो अगर हमने इसको सिंपली इस तरह से भी लिखा सिर्फ ये बताने के लिए कि ये ऐड फंक्शन दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो इट इज करेक्ट। सेकेंड चीज, जब हमारा ये मेन फंक्शन बिगिन होता है तो इसके अंदर ये दो वेरिएबल्स n1 और n2 लोकली डिक्लेयर किए हुए हैं। ये दो वेरिएबल्स जो लोकली डिक्लेयर किए हुए हैं इसलिए डिक्लेयर किए हैं सो दैट आई कैन रीड टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स, टू इंटीजर वैल्यूज को रीड करना है, टू इंटीजर डेटा को रीड करना है। इसको रीड इसलिए करना है क्योंकि फंक्शन में दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स की डिमांड है। अब हमने ये फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन का वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो यहाँ पर कोई वैल्यू कैच नहीं कर रहा। फंक्शन का नाम ऐड है तो यहाँ पर ऐड लिखा, क्योंकि ये दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है तो मैंने यहाँ पर दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स पास किए। ये n1 n2 का डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर, और इसके अंदर कुछ वैल्यू यूजर से रीड की है। नाउ इसके बाद में जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल void add int p int comma int q इस स्टेटमेंट पे चला जाएगा। कंट्रोल गोज टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, जहां पर भी आपका ये ऐड स्टेटमेंट ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है वहां से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो यहाँ पर जो ये n1 की वैल्यू है ये p के अंदर चली जाएगी, ये n2 की वैल्यू जो है ये q के अंदर चली जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा, ये दिस स्टेटमेंट विल बिकम int p is equal to n1 और दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, int q is equal to n2। ये इस तरह से बन जाएगा, मतलब n1 की वैल्यू p के अंदर चली जाएगी, जो भी n1 में हमने यूजर से रीड की है वो वैल्यू p के अंदर चली जाएगी, जो भी n2 में वैल्यू रीड की है वो वैल्यू q में चली जाएगी। तो n1 की वैल्यू p में
n2 की वैल्यू q में। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है n1 n2, ये ऐसे आर्ग्यूमेंट है जिसमें एक्चुअली वैल्यू प्रेजेंट है। n1 और n2 ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें एक्चुअली वैल्यू प्रेजेंट है। तो हम n1 कॉमा n2 को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू ले रहा है जिसके लिए फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। n1 n2 में जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज हम इसमें पास कर रहे हैं और वो वैल्यू के लिए इसको ऐड करना है। p और q ये वो आर्ग्यूमेंट है जो फॉर्मेलिटी ले रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। मतलब ये n1 की वैल्यू p में पास कर दी, n2 की वैल्यू q में पास कर दी। तो ये p और q को हम बोलते हैं p, q आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। इनको क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं n1 की वैल्यू को p में डालने की, n2 की वैल्यू को q में डालने की। ये स्टेटमेंट का मीनिंग ये होता है कि n1 की वैल्यू p में चलेगी, मतलब int p इक्वल टू n1, n1 की वैल्यू p में चलेगी। सिमिलरली int q इज इक्वल टू n2, n2 की वैल्यू q में चलेगी। तो जो भी वैल्यू इसमें अंदर गई है उसके लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो p और q में वैल्यू आ गई n1 n2 की करस्पॉन्डिंगली, दोनों को ऐड कर दिया और वैल्यू को प्रिंट करा दिया। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो स्टेटमेंट पूरी एग्जीक्यूट होगी फंक्शन की। Control goes back here and it will execute the program. This is how this program will work, which is a function which takes argument and return no value. Now let's see the output. Now see the output. We enter two numbers 3, 4. Now the result is addition of two numbers is 7. क्या है addition हमारे पास में? We get addition as 7. 3 plus 4 is 7. So this is a function which takes argument and return no value. अब ये चार तरीके के जो फंक्शन है उसको अलग अलग चार तरीके लिखने का क्या मतलब है? जब एक ही प्रोग्राम को हम चार तरीके से लिखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम डिमांड कर रहा है कि आर्ग्यूमेंट के साथ में लिखना है तो आप आर्ग्यूमेंट के साथ में प्रोग्राम लिखेंगे। अगर उसमें चाहिए कि नो रिटर्न चाहिए या रिटर्न चाहिए, जिस टाइप से भी आपको प्रोग्राम की डिमांड है उस टाइप से आप उसको लिखोगे कोड को। तो मैं ये चारों तरीके बता रही हूँ। वी हैव फर्स्ट सीन नो argument no return, second is argument and no return. Okay, now let's see the third way of writing the function. Now let's write the function which takes no argument and return value. Now this function is taking no argument, यहाँ पर कोई भी argument नहीं है, blank छूटा हुआ है, and it is returning int value. This function is returning int value and taking no argument. This function is taking no argument and returning the value. In which variable? A variable. A is an integer variable. Here we have declared two variables n1 and n2. क्योंकि हम यहाँ वैल्यू पास नहीं कर सकते इसीलिए इसके अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यूजर से वैल्यू रीड की है, स्कैन की है और डायरेक्टली दोनों को ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू रिटर्न कीवर्ड में। रिटर्न कीवर्ड से थ्रू वैल्यू वी आर रिटर्निंग इनटू द वेरिएबल दैट इज a variable. Now how the program will execute? The program will first execute this statement int a equal to add, मतलब एक a वेरिएबल इंटीजर टाइप डिक्लेयर होगा और ऐड फंक्शन कॉल होगा। जैसे ऐड फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। इस ऐड फंक्शन में कोई भी वैल्यू ले नहीं रहा, नो आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा। ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है? इंट टाइप की। और ये ऐड जो है ये फंक्शन है और इसके अंदर पैरामीटर क्या ले रहा है? नथिंग, इट इज टेकिंग नो पैरामीटर। तो ये फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न है इंटीजर वैल्यू। अब ये आर्ग्यूमेंट ले नहीं रहा तो इसके अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए n1 n2 और दो डेटा को रीड कर लिया n1 n2 को। रीड करने के बाद हम यहाँ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। क्या वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं? दोनों का एडिशन, n1 और n2 का। n1 और n2 का एडिशन जो है वो इंटीजर टाइप आएगा क्योंकि n1 n2 इंटीजर है। तो इंटीजर डेटा जो है वो रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर इंट लिखा हुआ है। जब ये इंटीजर डेटा रिटर्न कर रहा है तो हमने किस वेरिएबल में कैच किया? a, which is of type integer. Directly declaration of variable and assigning the value. Or you can write like this also. आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक a इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस a वेरिएबल में ये वैल्यू को कैच करेगा। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, ये a वेरिएबल कैच करेगा। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, ये a वेरिएबल वैल्यू कैच करेगा और इस a वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। अब ये देखो, ये कर्ली ब्रैकेट खुला है, ये बंद हुआ है। इसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो इसके लोकल रहेंगे। तो a वेरिएबल जो है वो लोकल है, a की एक्सेसिबिलिटी यहीं तक है।
जबकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को पास करने का क्या तरीका है, या तो एज अ पैरामीटर या फिर रिटर्न। अगर कॉलिंग प्रोग्राम से फंक्शन में वैल्यू पास करनी है तो एज एन आर्ग्यूमेंट, यहाँ से आर्ग्यूमेंट से इसके अंदर पास कर सकते हैं। और अगर फंक्शन से वैल्यू को मेन में डालना है तो यहाँ पर रिटर्न के थ्रू, रिटर्न जो कीवर्ड है, इस रिटर्न के थ्रू वैल्यू को यहाँ पर सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ n1 n2 लोकल वेरिएबल्स हो गए, यहाँ पर n1 n2 ही इस्तेमाल किया गया है। a वेरिएबल जो है दैट इज लोकल, that is being used within main only. So this will return the value after addition of number one and n1 and n2. It catches the value in the a variable and this a variable value gets printed. Now let's see the fourth क्या है। Function which takes argument and return value. So now I am going to write int a, comma, int b, and here we will write n1, comma, n2, n1, n2 दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, यूजर से वैल्यू रीड कर ली। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये फंक्शन लिखा जहां पर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फंक्शन का नाम ऐड टेकिंग टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ फंक्शन के कॉल के टाइम पे भी दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लिए, देन यहाँ पर हमने क्या किया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दैट इज ए वैल्यू विल बी प्रिंटेड, a value will be printed, and here in function definition we just return the value after adding number 1 and number 2. So here we are getting the value in int n1 comma int n2. Now see here, यहाँ पर आप सेम वैल्यू भी लिख सकते हो, सेम वेरिएबल। Here what we are doing, here we have declared a function which returns value and which takes two integer arguments. तो हमने यहाँ पर मेन के अंदर दो इंटीजर वेरिएबल्स नंबर 1 नंबर 2, उसको यूजर से वैल्यू रीड कर ली। अब यहाँ पर ये फंक्शन है विच टेक्स आर्ग्यूमेंट, कौन से आर्ग्यूमेंट्स, n1 n2। n1 n2 कैसे आर्ग्यूमेंट्स है, n1 and n2 आर टू इंटीजर वेरिएबल्स विच आर पास्ड टू द फंक्शन, फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, a विच इज इंटीजर टाइप। तो ये n1 की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर n1 में चलेगी, ये n2 की वैल्यू इस वेरिएबल n2 के अंदर चलेगी। अब ये नाम सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये n1 n2 जो है ये फंक्शन की डेफिनेशन के पैरामीटर है, यहाँ पर n1 और n2 ये एज अ पैरामीटर है एंड दीज आर लोकल टू दिस मेन। आप नाम अलग भी कर सकते हो, यहाँ पर no1 और यहाँ पर no2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अलग देने का सिर्फ यही एम है कि n1 n2 इज लोकल टू दिस फंक्शन और no1 एंड no2 इज द पैरामीटर टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो int no1 इक्वल टू n1, इसका मीनिंग क्या होगा, we have just seen that the statement is int no1 equal to n1 and the other statement is int no2 is equal to n2, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये no1 है तो यहाँ पर no1 लिखा हमने, ये no2 है तो no2 लिखा। तो यहाँ पर ये n1 n2 एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गए, ये एक्चुअल वैल्यू किसके अंदर चली गई, no1 और no1 no2 फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई, दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू रिटर्न की, किसके अंदर चली गई, ये रिटर्न फंक्शन रिटर्न में रिटर्न वैल्यू चली गई, और ए वेरिएबल जो इंटीजर टाइप है इसके अंदर ये वैल्यू कैच हो गई, और फिर हमने ये इसको प्रिंटफ स्टेटमेंट में इसको हमने प्रिंट करा दिया वैल्यू को। सो दिस इज द फंक्शन विच टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। नाउ लेट्स सी द output of the code. Now enter two numbers 10, 20
and the addition of two numbers is 30. Addition of 10, 20 is 30. So 30 will be the answer of this program. Okay. So this is the function which takes both the arguments, integer argument as two integer argument as a parameter and one int as return value.